بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ NN 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں عریش ندیم۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں وگن سے، جہاں پر شہر بھر میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہیں تھم سکا ہے۔ اسی حوالے سے شہر بھر میں سماجی برائیاں بھی ایک طرف عروج پر پہنچ چکی ہیں تو دوسری جانب پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے شہر کے سماجی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے۔ احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا۔ اس سلسلہ کے تحت سجاگ نوجوان اتحاد کے رہنما کامریڈ غلام حسین مغیری، گلاب وگن، میر عاجز چانڈیو نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہمارا مقصد شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی میں اضافہ اور سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے امن اور بحالی کے لیے پریس کانفرنس کرنا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وگن شہر میں دن ڈکیتوں اور رات چوریوں سے خالی نہیں۔ شہر بھر میں جوا منشیات سرعام چل رہے ہیں۔ منشیات سرعام چلنے سے کم عمر اسکول کے بچے آئس پاؤڈر جیسے موت مار نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وگن تھانہ پر مقررہ SHO کو کافی بار شکایات کرنے کے باوجود بھی پولیس کارروائی کرنے کو تیار ہی نہیں۔ DIG لاڑکانہ SSP قنور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نوٹس لے کر وگن شہر میں امن و امان کو قائم کیا جائے اور سماجی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑا جائے، ورنہ احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی جانب سے عوامی ایجنڈا پروگرام شروع کر دیا گیا۔ نوشہرہ میں ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ عرفان اللہ مسعود نے اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ تنویر احمد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا اچانک وزٹ کیا۔ ہاسپٹل میں فراہم کی جانے والی صحت سہولیات کا جائزہ لیا، مختلف شعبہ جات کا بھی معائنہ کیا۔ ہاسپٹل کی مختلف شعبہ جات، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی حاضری، ضروری اور جان بچانے والے ادویات کی دستیابی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ہاسپٹل میں داخل مریضوں کی عیادت دریافت کی اور علاج معالجہ ادویات کی فراہمی کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ عوامی ایجنڈا پروگرام پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر کے تمام سرکاری ہاسپٹلز، BHUs اور RHCs میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کی دستیاب ادویات کی فراہمی کے لیے جامع پلان تشکیل دے دیا گیا۔ ہاسپٹل میں صفائی، ادویات کی بروقت فراہمی اور دیگر امور پر غیر اطمینانی کا اظہار کیا، تاہم ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور اسٹاف کی موجودگی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا، ہاسپٹل کو ایکسپریس لائن سے مسلسل بجلی کی فراہمی کے مسئلے پر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میئر میونسپل کارپوریشن شہید بینظیر آباد قاضی محمد رشید بھٹی نے ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ شہر بھر کے وزٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اس حوالے سے آفتاب عالم خان۔ جی بالکل، نواب شاہ میں بھی بارشوں کا سلسلہ کل رات سے جاری ہے اور یہ وقفے وقفے سے بارش کبھی تیز اور کبھی کم ہو رہا ہے۔ اس کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے علاقے کے جائزہ لینے کے لیے میئر میونسپل کارپوریشن شہید بینظیر آباد قاضی محمد رشید بھٹی صاحب نے ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن کے ساتھ سٹی ڈرین سسٹم کے علاقہ مہران کالونی کی ڈسپوزیبل، تاج کالونی ڈسپوزیبل، غریب آباد ڈسپوزیبل اور شہر کے مختلف علاقے کا دورہ کیا اور نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر قاضی شاہ رخ رشید بھٹی، ایکشن LPOD PS ڈپٹی کمشنر زبیر احمد ملا اور PS میئر نواب شاہ عامر وہاب صدیقی بھی موجود تھے اور انہوں نے شہر کا جائزہ لیا۔ جس جگہ پہ پانی کا نکاس جمع ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے فوراً ہدایت دی اور عملے کو وہاں پہ روانہ کیا اور خود بھی اس وقت وہ شریک تھے اور علاقے کی دورہ کرتے ہوئے جہاں پہ بھی انہوں نے دیکھا کہ پانی کا نکاس نہیں ہو رہا، وہاں پہ فوری عملے کو ہدایت دی کہ یہاں سے فوراً پانی نکالے اور ڈرینیج کے سسٹم کو کلیئر کریں۔ جی میرپور خاص کی تحصیل شجاع آباد کے نواحی گاؤں کی بیوہ نے پریس کانفرنس کی۔ دولت لغاری کی رہائشی بیوہ رضیہ خاص خیلی نے اپنی 3 بہنوں کلثوم، رابعہ اور صالحہ کے ساتھ پریس کلب میرپور خاص پہنچ کر پریس کانفرنس کی۔ الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ہماری زرعی زمین پر نور محمد عرف ممتاز خاص خیلی نے 2.5 ایکڑ زرعی زمین پر ہتھیاروں کے زور پر قبضہ کر لیا ہے اور اس پر موجود فصل بھی کاٹ دی ہے۔ سپورٹ وڈیرا اویس خاص خیلی کر رہا ہے، ہمارا بڑا مالی 30 لاکھ روپے کا نقصان بھی کیا ہے۔ اسی شکایت پر SSP میرپور خاص DSP شجاع آباد اور ان کے حدود کی تھانے SHO کو درخواست بھی دی، لیکن بعض لوگوں کے خلاف اب تک کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ بعض ملزمان کی جانب سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ بعض افراد کی جانب سے ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات درج کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ متاثرہ خواتین نے DIG میرپور خاص SSP میرپور خاص سمیت اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر انصاف دلایا جائے۔ بصورت اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد کے آفس کے سامنے بچوں سمیت خودسوزی کر لیں گے۔ تمام ذمہ داری متعلقہ افسران اور نور محمد عرف ممتاز خاص خیلی اور اویس خاص خیلی پر ہوگی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور بات کرتے چلیں اب لیا کی، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مالی امداد کی رقم خواتین میں فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔
चौकाज़ा में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ ख़वातीन में माली इमदाद की फ़राहमी का सिलसिला निजी स्कूल में जारी है। डिप्टी डायरेक्टर बिस्प मलिक हाशिम छीना की ज़र निगरानी बिस्प की अहले ख़वातीन को बिला कटौती रकम की अदायगी की जा रही है। इंचार्ज बिस्प फैज़ान अलवी ख़वातीन के टोकन और डिवाइसेस पर ख़वातीन को बेहतर तरीके से सेंटर पर सहूलियात मुहैया करने के लिए कोशां है। बगैर किसी कटौती के कलीमुल्लाह, हसनैन, सुलेफ़कार, मोहम्मद इमरान अमीन रकम की अदायगी कर रहे हैं। ख़वातीन का इज़हार तशक्कुर और इनके एहसन अंदाज को अवामी समाजी हल्के भी दाद दे रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि हम डिवाइस वालों से अहल ख़वातीन को 100% मुकम्मल रकम दिलवा रहे हैं, किसी किस्म की कटौती नहीं करने देंगे और वही कटौती होगी। शिकायत पर कई डिवाइसेस भी बंद की गई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लिया ने 2 टोक बयान जारी कर दिया। DPO शेखपुरा बिलाल ज़फ़र शेख की हिदायत पर यादगार शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO शेखपुरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा पंजाब पुलिस हमारे माथे का झूमर हैं। शोहदा शेखपुरा की फैमिलीज़ की गमों और खुशी में पंजाब पुलिस शाना बशाना खड़ी है। शोहदा पंजाब पुलिस को खराज अक़ीदत पेश करके इनकी खिदमात को सराहते रहेंगे। अब कुछ बात कर लेती हैं जी कमालिया की, जहाँ पर शोहदा पुलिस को खराज अक़ीदत पेश करने के हवाले से शम्में रोशन की गई हैं। पुलिस शोहदा डे पर शोहदा की याद में सर्कल कमालिया पुलिस की जानिब से कलमा चौक में शमा रोशन की गई। शोहदा पुलिस डे तकरीब में पुलिस एहलकारों के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद। ASP सुंदर इसाक और SHOs की जानिब से शमें रोशन की गई। तकरीब का मकसद शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना है। ASP सुंदर इसाक का मजीद कहना था कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। लिया में भी शोहदा पुलिस के हवाले से शमें रोशन की गई और चिरागां किया गया। मुल्क भर की तरह ज़िले पुलिस की जानिब से लिया में भी चिरागां किया गया। GPO असदुर्रहमान, डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने दीगर अफसरान के हमरा दिए जलाकर चिरागा किया। शोहदा पुलिस की याद में पुलिस रेस्क्यू, ट्रैफिक पुलिस, एलिट फोर्स, पेट्रोलिंग पुलिस और लेडीज़ पुलिस एहलकारों ने शमें रोशन की। सिविल सोसाइटी भी इस मौका पर कसीर तादाद में मौजूद थी, जिन्होंने दिए जलाए और शोहदा पुलिस के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया। DC लिया अमीरा बेदार का कहना था कि शोहदा पुलिस ने अपना कल हमारे आज को महफूज बनाने के लिए कुर्बान किया। शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम मुआशरे में महफूज हैं। DPO लिया असदुर्रहमान का कहना था कि चिरागा का मकसद शोहदा को खराज तहसीन पेश करना और इनकी फैमिली से इजहार यकजहती करना है। फख्र है ऐसी फोर्स का हिस्सा हूँ जिसने मुल्क और कौम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियाँ दी। अजीम कौमें अपने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करती। फर्ज के खातिर जान कुर्बान करने वाले पुलिस शोहदा हमारे हीरोज हैं। जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा पर पूरी कौम को फख्र है। मज़ीद बात होगी बुलेटिन में अब रायवंड की, जहाँ पर DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में रायवंड में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान के रुझाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। SP सदर ने अवामुन्नास के मसाइल सुने, मौका पर ही हल करने के अहकामात भी जारी किए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक खुली कचहरी में अवामुन्नास और मातहत एहलकारों और अफसरान के दरपेश मसाइल भी सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुन्नास के मबैन फासले को कम करना है। SP सदर का मजीद कहना था कि अवामुन्नास के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अवामुन्नास बिला खौफ व खतर जराइम की वन पर इत्तला दें। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। बांधी की बुलेटिन में अब बात करेंगे, जहां पर मनाड़ों में मनशियात का धंधा सरेआम चलने लगा और पुलिस की मुजरिमाना गफलत शहरियों को ले डूबने लगी। मनशियात सरेआम फरोशी और पुलिस की मुजरिमाना खामोशी, मवाली लोगों का मोहल्लों में शोर शराबा। मनाड़ों के मौजूद शहरियों चौधरी नज़ीर अहमद अराई, चौधरी अली हसन अराई की सरपरस्ती में पुलिस चौकी मनाड़ों के सामने शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने एहतजाज करते हुए कहा, मनाड़ों में सरेआम कच्चा शराब आइस Z21 फरोख्त होने लगा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी है। काफी बार नशे में मस्त मवालियों ने मोहल्ले के मौजूद अशखास से भी बदतमीजी की। हम मवालियों से तंग आकर एहतजाज कर रहे हैं। मनाड़ों की सियासी, समाजी और मौजूद शख्सियात ने DIG और SSP शहीद बिन नज़ीराबाद, GSP काजी अहमद और SHO से पुरजोर मुतालबा किया कि मनशियात फरोशों और इनके सहूलतकारों मनाड़ो पुलिस के खिलाफ जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, रुक करते चलें बुलेटिन में अब अटक, जहाँ पर अटक पुलिस की जानिब से भी शोहदा पुलिस को खराज अक़ीदत पेश करने के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। यूम शोहदा पुलिस के हवाले से अटक पुलिस की जानिब से कचहरी चौक अटक ता फवारा चौक अटक तक रैली का इनेकाद किया गया। शोहदा अटक पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए फवारा चौक अटक में शमें रोशन करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। GPO अटक सरदार गयास गुल खान, जिला इंतजामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान के साथ सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने भी शिरकत की। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए बायस तकलीद हैं। GPO अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान का कहना था कि शोहदा पुलिस हमारे माथे का झूमर है। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे लिए बायस तकलीद हैं। जान से बढ़कर कीमती चीज़ किसी शख्स के लिए नहीं होती। जो अपनी जान फर्ज पर कुर्बान कर देते हैं वही अल्लाह के हुजूर बुलंद मर्तबा पाते हैं। हब में डिप्टी कमिश्नर हब रोहाना गुल काकड़ फील्ड्स में मुतहरिक हो गई।
भवानी शाह पंप के मुकाम पर निकासी आब मशीनरी के जरिए जारी। गुज़िश्ता दिनों बारिश की वजह से भवानी शाह पंप के मुकाम पर मेन RCD शारा पर पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना था। डिप्टी कमिश्नर हब गुल काकर ने नोटिस लिया, NHA हुकाम को फौरी तौर पर निकासी आब का हुक्म जारी किया। डिप्टी कमिश्नर हब के हुक्म पर NHA हुकाम ने निकासी आब पर मशीनरी का काम शुरू कर दिया और रोड को जमा शुदा पानी से क्लियर कर दिया है। मुकामी कारोबारी हजरात और मुसाफिरों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इक़दाम को खूब सराहा। अब आपको बताते चलें जी, कोटरी के निजी स्कूल से जहाँ पर तलबा तलबात में इनामात तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। खुर्शीद कॉलोनी साइड कोटरी के निजी स्कूल में सालाना इम्तहानात में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में मेडल्स और शील्ड्स तकसीम करने की तकरीब अकबर लॉन खुर्शीद कॉलोनी में मुनक्किद हुई, जिसकी शुरुआत पाक किताब की तलावत से की गई, जिसमें मेहमान खास अयूब खान ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोइस्तान थर के चेयरमैन सैयद हुसैन शाह बुखारी और दीगर मेहमान थे, जिन्होंने पोजीशन होल्डर्स बच्चों को मेडल्स और शील्ड्स तकसीम की। इस मौका पर मेहमान खास अयूब खान और सैयद गुलाम हुसैन बुखारी ने साफिन से गुफ्तगू की कि स्कूल बेहतरीन स्कूल है जो बच्चों को तालीम के साथ साथ खेलों के बेहतरीन मौके भी फराहम करता है। स्कूल के प्रिंसिपल आतिफ खान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे स्कूल की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ स्कूल के टीचर्स का है, जिनकी मेहनत से हमेशा बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। अब बुलेटिन में कुछ बात होगी जी मस्जिद की तामीर के हवाले से। तो सराय नौरंग में मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर ली है। मेयर तहसील सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने कसीर तादाद में अहले मोहल्ला की मौजूदगी में फीता काट कर बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौका पर AC फरीदुल्लाह खान, बरली खैल और समाजी शख्सियत शाहिदुल्लाह खान, खलील हैदर, फरहान खान और दीगर भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद शुरा से गुफ्तगू करते हुए हाजी अजीजुल्लाह खान ने CFC यामनान और दीगर तमाम डोनर्स का दिली शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से लगी मरवत में अब तक सैकड़ों की तादाद में फलाही मनसूबे कायम किए जा चुके हैं। हजारों अफराद इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। हाजी अजीजुल्लाह खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि गुरबा मसाकीन यतीमों और माजूरों की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा और इनके साथ किए गए वादे को पाया तकमील तक भी पहुँचाएंगे। याद रहे, नौर सुल्तान महमूद में फलाही तंजीम CFC यामनान के ताउन से तहसील मेयर सराय नौरंग हाजी अजीजुल्लाह खान ने मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर ली है। अहवाल जान लेते हैं जी अब कुछ घोटकी का बारिश के हवाले से। तो 2 घंटे की मुसलसल बारिश ने कानपुर महर शहर का नक्शा ही बदल डाला। कानपुर महर में 2 घंटों की बारिश ने जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया के पोल खोल दिए। कानपुर महर शहर के हम इलाके पंचगली, घोटकी बस स्टेशन और दीगर इलाके जरिया कानपुर महर हिंदू कॉलोनी, सरदार रोड, छकराटो रोड, बेंगवाड़ कॉलोनी, मेरानी कॉलोनी और दीगर इलाकों के घरों और गलियों में पानी दाखिल। कानपुर महर और गिरदराह में सुबह सवेरे 2 घंटे तक बारिश हुई। जिला इंतजामिया की जानिब से बारिश से कब्ल उठाए गए अधूरे इक़दाम के पोल्स खुल गए। कानपुर महर में बरसाती पानी के निकासी न होने से शहरी परेशान, नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। खबर शामिल करते चैलेंज अब दीरबाला से, जहां पर शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया गया है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीरबाला में भी यौम शोहदा पुलिस नहायत अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। DPO दीरबाला वकार अहमद की खुसूसी हिदायत पर दीरबाला पुलिस ने शोहदा पुलिस की कब्रों पर हाजिरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की गई हैं। दीरबाला पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोहदा पुलिस की कब्रों पर सलामी दी। दीरबाला पुलिस के अफसरान पुलिस शोहदा की फैमिली मेंबरान से मिले, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, दीरबाला पुलिस शोहदा पुलिस के खानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा पुलिस कौम के हीरोज हैं, क्योंकि इन शोहदा ने कौम के आज के लिए अपने कल को कुर्बान किया, शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। इनकी कुर्बानी का कोई नेमुल बदल नहीं। शोहदा की फैमिली काबिल कद्र और काबिल इज्जत है, इनको हम कभी भी तन्हा नहीं छोड़ सकते। बुलेटिन में बात होगी जी खिपरू की, जहाँ पर शायद इस्लाम तहीम कहते हैं कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशियाँ हैं। सूबाई वज़ीर बराए लेबर और फोकल पर्सन फ्लड रेन एमरजेंसी शाहिद अब्दुल सलाम तहीम, मेंबर सूबाई असम्बली अली हसन गोरजो और डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सांगढ़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा के सरबराही में मुमकिन तवक्को से ज़्यादा तूफ़ानी बारिशों को निपटने और आवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए मुतल्लिक़ा अफ़सरान के साथ इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें शहरी और देही इलाकों से बर वक्त निकासी आपका जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा, आवाम के जान माल और तहफ़्फ़ुज़ और खड़ी फसलों को बचाने के लिए मुमकिन इक़दाम करेंगे। इससे नालों की कमज़ोर पुश्तों पर नज़रदारी की जाएगी और कुदरती आबी गुज़रगाहों से रुकावटें भी हटाई जाएंगी। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ने हैस हुकाम को हदायत जारी कर दी कि वो शहरी इलाकों में कायम पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फ्राहमी के लिए इंतजाम पेश की मुकम्मल कर ले। महकमा बल्दियात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर मशीनरी को दुरुस्त हालत में रखें। इम्कानी बारिशों के पानी की बर वक्त निकासी को यकीनी बनाने के लिए अमले को ट्रेन करें, ताकि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जबकि डिप्टी कमिश्नर सांगढ़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा की जानिब से जिला इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम के बारे में भी तफसीलन ब्रीफिंग दी गई। इजलास में MP अली हसन ने भी शिरकत की। कहा कि खिपरू, पीरमल और मुलहका इलाकों से निकासी आपके लिए बनाया गया RC नाला फाल किया जाए। इजलास में चेयरमैन जिला कौंसल, तमाम म्यूनसिपल और टाउन चेयरमैन, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, महकमा इत्तलात, महकमा लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। लियाकतपुर के चक नंबर 221 के करीब नहर को शिगाफ पड़ गया।
हेड फ्री चोलिस्तान चक नंबर 221 के करीब नहर 1L को 40 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से कई एकड़ फसल ज़रियाब जो कि कपास की थी। लोग अपनी मददाब के तहत शिगाफ को बंद करने के लिए कोशिश करने में मसरूफ, लेकिन तहाल 24 घंटे होने के बावजूद भी शिगाफ को बंद नहीं किया गया। नहर 1L को रात के बंद नहीं किया गया था। पानी का बहाव बढ़ता जा रहा है। नहर में गुंजाइश से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से नहर में 2 जगह शिगाफ पड़ा है। सोलोवाली फार्म के साथ नहर 1L को शिगाफ पड़ने से तैयार फसल कपास कई एकड़ ज़ेर-ए-आब आने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और अब आपको बताएंगे जी डेरा गाजी खान से, जहां पर शोधा पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए शम्में रोशन की गई। योम शोधा पुलिस के सिलसिला में यादगार शोधा पुलिस कश्मीर चौक और तौंसा शरीफ में शम्में रोशन करने की तकरीब DPO डेरा गाजी खान सैयद अली, SP इन्वेस्टिगेशन बख्तियार अहमद खान, SDPO सिटी और DSP ट्रैफिक और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। तकरीब में कसीर तादाद में स्कूल के बच्चों, शहरियों, मीडिया नुमाइंदगान की भी शिरकत। DPO सैयद अली और SP इन्वेस्टिगेशन ने शम्में रोशन की। स्कूल के बच्चों और शहरियों ने भी शोधा की याद में शम्में रोशन की। शोधा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क कौम की सरबुलंदी और सलामती के लिए दुआएं की गई। DPO डेरा गाजी खान सैयद अली का कहना था कि शोधा हमारा असासा है। योम शोधा पुलिस मुल्क भर में पुलिस के शोधा को खराज अकीदत पेश करने का एक अहम मौका है। पुलिस के अज़ीम सनात और कुर्बानियां लाजवाल हैं। दुख की हर घड़ी में शोधा की फैमिलीज के साथ खड़े हैं। पुलिस हमारे मौसन और हम सबके लिए मशअले राह है। डेरा गाजी खान पुलिस के 37 शोधा ने फर्ज की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। योम शोधा पर पुलिस शोधा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।